کیا ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے؟ کیا ہم نے تاریخ کے اوراق کو پلٹے ہیں؟ کیا ہم نے تاریخ کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہندوستان پر انگریزوں کے قبضہ ہونے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو وہ کس کو پہنچی تھی؟ مسلمانوں کو پہنچی تھی، کیونکہ مسلمان حاکم تھے، حاکم سے محکوم بنے، مسلمان بادشاہ تھے، بادشاہ سے غلام بنے، تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو پہنچی تھی؟ مسلمانوں کو پہنچی تھی۔ مسلمان حاکم سے محکوم بنے تھے، اس لیے اگر جنگ آزادی کی لڑائی سب سے پہلے کسی نے لڑی تو وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال کے اندر ہندوستان آزاد ہو گیا۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان سن 1947 15 اگست کے دن آزاد ہوا۔ پیچھے کی تاریخ کیا ہے؟ اگر پیچھے کے تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو معلوم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری ہے۔ آج کے دن آپ دیکھیں گے کہ اسکولوں میں، کالجز میں، اسی طریقے سے یونیورسٹی میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے۔ ہندوستان تو آزاد ہوا تھا 15 اگست کو، لیکن 26 جنوری کو ہم لوگ کس وجہ سے خوشی مناتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ ہندوستان آزاد ہوا تھا 15 اگست 1947 کو، اور ہندوستان کا جو آئین ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، ہندوستان کا جو سنویدھان ہے، ہندوستان کو کس طریقے پر چلایا جائے گا، ہندوستان کے آزادی کے بعد اس کا ایک مسودہ تیار کیا گیا تھا، اس کا ایک آئین تیار کیا گیا تھا، اس کا ایک دستور بنایا گیا تھا جس کو ہم لوگ سنویدھان بولتے ہیں۔ وہ 26 جنوری سن 1950 میں دستور تیار ہو کر آیا، اور اس دن سے یعنی 26 جنوری سن 1950 سے ہندوستان کو کس طریقے پر چلنا ہے، ہندوستان کو کس قانون کے تحت چلنا ہے، اس کا نفاذ 26 جنوری سن 1950 کو عمل میں آیا۔ اس وجہ سے ہم ہندوستان میں، ہندوستان کے لوگ جگہ جگہ اسکولوں اور کالجز میں جھنڈے پھہراتے ہیں۔ یعنی ہندوستان پہلے اسلامی ممالک تھا۔ انگریزوں کے قابض ہونے سے پہلے ہندوستان کون سا ملک تھا؟ اسلامی ملک تھا، لیکن ہندوستان کے قبضہ، ہندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریز ہندوستان پر قبضہ کر لیے، تو ہندوستان کے قبضہ کرنے کے بعد ہندوستان جب 1947 کو آزاد ہوا، آزادی کے بعد ہندوستان کو کس طریقے پر چلایا جائے گا، اس کے لیے ایک دستور تیار کیا گیا، ایک آئین تیار کیا گیا۔ 26 جنوری سن 1950 کو اس کا نفاذ عمل میں آیا۔ یعنی آج سے ہندوستان کا جو بھی قانون ہوگا، جو طریقہ ہوگا، جو سرکاری قانون ہوں گے، جو سرکاری ضابطے ہوں گے، وہ اس طریقے پر چلیں گے، یعنی دستور کے تحت چلیں گے۔ اس لیے آج کے دن لوگ خوشی مناتے ہیں، آج کے دن جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں۔
लेकिन आप स्कूलों और कॉलेजेस में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए, किसी से भी पूछ लीजिए, आप छोटे से बच्चे को पूछेंगे, गली में खेलते हुए बच्चे को पूछेंगे कि महात्मा गांधी जी कौन थे, तो डायरेक्ट क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट कहेंगे कि ये वो फ्रीडम फाइटर थे, ये वो इंसान थे जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराया था। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप क्या हमने तारीख को पढ़ा है, क्या हमने तारीख के औराक को पलटे हैं, क्या हमने तारीख को सही तरीके से समझा है, नहीं समझा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के कब्जा होने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ पहुंची थी तो वो किसको पहुंची थी, मुसलमानों को पहुंची थी, क्योंकि मुसलमान हाकिम थे, हाकिम से महकूम बने, मुसलमान बादशाह थे, बादशाह से गुलाम बने, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंची थी, मुसलमानों को पहुंची थी। मुसलमान हाकिम से महकूम बने थे, इसलिए अगर जंग आजादी की लड़ाई सबसे पहले किसी ने लड़ी तो वो कौन थे, वो मुसलमान थे। हम लोग समझते हैं कि 2-4 साल के अंदर हिंदुस्तान आजाद हो गया। हम लोगों के जहनों में यह होता है कि हिंदुस्तान सन 1947 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ। पीछे की तारीख क्या है, अगर पीछे के तारीख को पढ़ेंगे, तारीख के औराक को पलटेंगे तो आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में पूरे 200 साल से जायद का अरसा गुजरा है, जिसमें मुसलमानों ने तरह तरह जंग आजादी लड़ी है। 100 साल तो ऐसे थे, 100 साल और उससे भी जायद ऐसे थे जिसमें तरह तरह मुसलमानों ने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले जंग आजादी की लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने लड़ी है। किस सन में लड़ी है, सन 1754 ईस्वी में लड़ी है। हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था, सन 1947 ईस्वी में। सबसे पहले जंग आजादी की लड़ाई जिसको कहा जा सकता है वो कितनी सन को थी, सन 1754 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने कलकत्ता में जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। उस वक्त कलकत्ता के 2 मकाम पर, फोर्ट विलियम और एक जगह था डायमंड हार्बर, वहां पर वो लोग काबिल थे। वहां पर हिंदुस्तान पर किस तरीके से कब्जा किया जाए, हिंदुस्तान पर किस तरीके से अपनी हुकूमत चलाई जाए, वहां पर वो लोग मीटिंग किया करते थे। चुनांचे नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने इसको भापा, समझा, तो फोर्ट विलियम पर हमला किया। हमला करने के बाद वहां से अंग्रेज भागने पर मजबूर हो गए और डायमंड हार्बर पर जाकर छुप गए। तो सबसे पहले जंग आजादी की लड़ाई किस सन को लड़ी गई, सन 1754 ईस्वी को। उसके बाद 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनका नवासा नवाब सिराजुद्दौला हुक्मरां हुए सन 1757 ईस्वी में। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई की, अंग्रेजों से जंग की सन 1757 में। आप तारीख के सफात को पढ़ेंगे, तारीख में लिखा हुआ है पलासी की जंग सन 1757 में, इसी तरीके से बक्सर की जंग सन 1764 ईस्वी में हुई। आप तारीख को पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा। चुनांचे उसके बाद हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में आता गया, हिंदुस्तान पर वो लोग काबिज होते गए। चुनांचे ये लोग बिहार, उड़ीसा, बंगाल पर अच्छी तरीके से कब्जा कर लिए। उसके बाद उन्होंने दक्षिण की तरफ रुख किया। दक्षिण के फरमारवा कौन थे, फतेह अली खान। फतेह अली खान का नाम आपने सुना है, नहीं सुना होगा। फतेह अली खान कौन थे, ये हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। उन्होंने सन 1782 ईस्वी में वो हुक्मरां हुए। सन 1783 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सन 1783 ईस्वी से लेकर सन 1784 ईस्वी तक पूरे 1 साल ये जंग चला। इस जंग में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को फतह हुई। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद मोहतरम हजरत अली हैदर खान जो उनके वालिद थे, दोनों ने मिलकर 4 जंगें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। उसके बाद सन 1784 ईस्वी के बाद एक जंग और हुई जिसमें हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपने लोगों ने गद्दारी की। गद्दारी की वजह से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त हुई। उसके मुआवजे में, उसके बदले में तावान भरना पड़ा, 3 करोड़ रुपए। इसी तरीके से जिस इलाके पर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह
अपनी हुकूमत चलाते थे, आधा इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा। इसी तरीके से अपने 2 शहजादों को बतौर यरगमाल अंग्रेजों को देना पड़ा। उसके बाद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जनूबी हिंद के जितने भी उमरा थे, उजला थे, जो लोग हुकूमत करते थे, लोगों से खत्तो किताबत की, उन लोगों से कहा अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है, तमाम लोग एकजुट हो जाओ, तमाम लोग मुत्तहिद हो जाओ। अगर अंग्रेज इसी तरीके से एक एक रियासत पर कब्जा करते जाएंगे तो तुम्हारे हाथों से पूरा हिंदुस्तान निकल जाएगा, तुम लोग गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। चुनांचे नवाब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम लोगों से खत्तो किताबत की, लेकिन जनूबी हिंद के कुछ उमराओं ने, कुछ उजराओं ने गद्दारी की और सन 1799 ईस्वी को हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। जब 1799 ईस्वी को हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, लिखने वालों ने लिखा है कि 3 दिन तक हजरत की लाश मैदान जिहाद में पड़ा हुआ था। किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर हजरत टीपू सुल्तान को देखे कि जिंदा है या इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना रौब और दबदबा था। अंग्रेज इतना डरते थे कि 3 दिन तक जाने को पास को तैयार नहीं हुआ। मुर्दा लाश है, लेकिन किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन के बाद एक जनरल जिसका नाम हॉर्स था, अंग्रेजों का कमांडर था, वो डरते डरते पास में गया, जाकर हिलाकर देखा कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहादत कर गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। चुनांचे उन्होंने वहां जाकर खड़े होकर ऐलान किया और कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से ये हिंदुस्तान हमारा है, क्योंकि अंग्रेजों के सामने जो सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान था ये टीपू सुल्तान था, ये इस दुनिया में नहीं रहा, तो सोच लो आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते करते अंग्रेज दिल्ली तक जा पहुंचे। दिल्ली में जितने भी सरकारी चीजें थी लूटने लगे। अंग्रेज तमाम चीजों को लूट कर तमाम चीजों को अपने पास जमा करने लगे। वहां पर एक तहरीक चलाई सबसे पहले, अगर किसी ने, तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के उस तहरीक को उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़ाया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने सन 1757 ईस्वी में ऐलान किया और एक फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हरब हो चुका है। दारुल हरब होने का मतलब यह है कि कोई इस्लामी मुल्क हो, उसमें गैरों का कब्जा हो जाए, गैर उस पर काबिज हो जाए, उसका तसल्लुत हो जाए, उन लोगों की वहां हुकूमत आ जाए, इस्लामी एतबार से वहां पर कोई चीज ना चले, वो मुल्क क्या हो जाता है? दारुल हरब हो जाता है। उन्होंने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हरब हो गया है। जब हिंदुस्तान दारुल हरब हो चुका है तो तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, तमाम मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इसी तरीके से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देहलवी और इनके शागिर्दों ने उलमाए किराम की एक जमात तैयार की, जिनमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे, मौलाना कासिम नानोतवी थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी थे और भी बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम थे। ये लोग तमाम लोग एकजुट हुए। तमाम लोगों ने मैदान जिहाद में, शामली के मैदान में सन 1857 ईस्वी में शामली के मैदान में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि 5 लाख मुसलमानों को इस जंग में शहीद किया गया। सन 1857 में कितने लोगों को शहीद किया गया? 5 लाख लोगों को शहीद किया गया जो मुसलमान थे, और उसमें 90,000 ऐसे थे जो उलमा थे, मौलाना थे, मुफ्ती थे, हाफिज थे, कारी थे। 90,000 उलमा किराम को शहीद किया गया सन 1857 ईस्वी में। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम तारीख को नहीं पढ़ते, हम नहीं देखते। आज हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में जो निसाब डाला गया है उसमें नहीं बतलाया जाता हमारे अकाबिर और असलाफ ने किस तरीके से कुर्बानियां पेश की है।
तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सन 1857 ईस्वी में 5 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज अपने यहाँ से यूरोप से बहुत से पादरियों को बुलाया और कहा कि हिंदुस्तान को अब ईसाई कंट्री बनाना है। वहां से पादरियों को बुलाकर वहां के पादरियों से कहा गया कि अपनी दीन की इशाअत करो, अपने दीन की तबलीग करो। तो जो उलमाए किराम थे उस दौर के, उन्होंने इसको भापा और कहा कि अगर इसी तरीके से ये काम चलता रहे तो ऐसा होगा कि हिंदुस्तान पूरा ईसाई मुल्क बन जाएगा, इसलिए हमें उसके लिए कुछ करना है। चुनांचे सन 1866 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में आया। दारुल उलूम को किस वजह से बनाया गया? इस वजह से बनाया गया ताकि जो स्टूडेंट वहां पर पढ़कर दीन की तालीम हासिल करे, उसके बाद वो मैदान जिहाद में जाकर के खिलाफ जंग आराई करे। आज क्या कहा जाता है? आज मदारिस को इसी तरीके से दारुल देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जाता है। हालांकि दारुल देवबंद की बुनियाद इस बुनियाद पर रखी गई, इस वजह से रखी गई थी ताकि यहाँ से जो उलमाए किराम पैदा हो, जो लोग पैदा हो, वो लोग वहां हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जंग आराई करे। चुनांचे सन 1866 ईस्वी में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। वहां पर जो सबसे पहले पढ़ाने वाला था उनका नाम क्या था? उनका नाम भी महमूद था, और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था उनका नाम भी महमूद था, जो बाद में जाकर मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी के नाम से मशहूर हुए। चुनांचे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी अब फरागत के बाद 40 साल तक पूरे हिंदुस्तान में मेहनत करते रहे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझाते रहे कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से अगर नहीं भगाया गया, ये हमारे दीन पर हमलावर होंगे, हमारे दीन को हमसे छीन लेंगे, इसलिए हमें इन लोगों को भगाना है। 40 साल तक मेहनत की। जब अंग्रेजों ने देखा कि महमूदुल हसन देवबंदी इस तरीके से लोगों में जाकर बयान कर रहा है, तो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में यूरोप में कैद कर दिया गया। उनके साथ उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी थे, और उनके साथ और भी 200 उलमाए किराम थे। इन 200 उलमाए किराम को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया। इन 200 उलमाए किराम को माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया। माल्टा की जेल में तरह तरह की अजियतें दी जा रही थी, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही थी, तरह तरह की परेशानियों में वो लोग मुब्तला थे। बताया जाता है तो ठंड इलाका था, वहां पर बर्फ की सिल्लियों पर इन उलमाए किराम को लिटा कर बांध दिया जाता, तकलीफें दी जाती। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी से कहा जाता, ए महमूद, तुम अपना फतवा वापस ले लो। वो कहते कि अगर तुम अपना फतवा वापस ले लोगे, तुम्हें हम हिंदुस्तान वापस भेज देंगे, तुम्हें रिहा कर देंगे, बस तुम इतना कह दो कि तुम अंग्रेजों के साथ हो। तो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का जवाब वही था। वो कहते थे कि मेरा जवाब पहले भी वही था कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालना है, मेरा जवाब आज भी वही है। आज अगर मेरी जान निकाल ली जाए तब भी मैं वही कहूंगा कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालना जरूरी है। चुनांचे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी और इसी तरीके से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को सन 1920 ईस्वी में वापस इंडिया भेज दिया गया, रिहा कर दिया गया। उस वक्त सन 1920 ईस्वी में जब ये लोग वापस आने के बाद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने एक जमीयत के पैसे से गांधी जी उस सन 1889 ईस्वी में बैरिस्टरी करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। सन 1891 ईस्वी में वो वापस इंडिया आए। इंडिया में 2 साल रहे। 2 साल रहने के बाद जब उनका दिल यहाँ नहीं लगा, फिर वापस साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद सन 1920 ईस्वी में मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने जमीयत के फंड से, जमीयत के पैसे से गांधी जी से कहा कि जाओ तुम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करो और अपने मजहब के लोगों को समझाओ और कहो कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अपने मजहब पर अमल करना है तो इन अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। तो सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान का दौरा किया। पूरे हिंदुस्तान के दौरा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग मकामात पर अपने कौम के लोगों से मिलने के बाद तमाम लोग को एकजुट किया। तमाम लोगों को एकजुट करने के बाद तमाम हिंदू हमारे जितने भी भाई एक साथ हुए हैं, सन
1920 ईस्वी में हुए। सन 1857 में कुछ लोग शामिल हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग सन 1920 ईस्वी में गांधी जी के दौरे के बाद तमाम लोग एकजुट हुए, तब जाकर सन 1947 ईस्वी में जाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया गया। तो हिंदुस्तान के आजाद कराने की तारीख कब से शुरू हुई? सन 1754 ईस्वी से हमारे अकाबिर और असलाफ ने कुर्बानी देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि हिंदुस्तान के जो रहनुमा था, इससे पहले मुसलमान थे। हिंदुस्तान में जो तकलीफें सबसे ज्यादा अंग्रेजों के काबिज होने के बाद बर्दाश्त की, तो वो मुसलमान थे, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुसलमानों को पहुंची। लाखों लोग अपनी जानों को शहीद कर दिए। किस वजह से किए? इस वजह से किए ताकि हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहे। हमारे अकाबिर असलाफ ने अपनी कुर्बानियां सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, आजाद जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी, ताकि दीन को बाकी रहे, इस्लाम बाकी रहे, इस वजह से कुर्बानियां दी। जिस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया, तकलीफें बर्दाश्त की, मुसीबतें बर्दाश्त की, इसी तरीके से हमारे अकाबिर असलाफ ने इस दीन को बचाने के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए, फांसी के फंदे को चूम लिया। इसी तरीके से दहकते हुए अंगारों पर उनको डाल दिया गया। उन मुसीबतों को भी वो लोग बर्दाश्त किए, लेकिन आज मौजूदा दौर में हमारे अकाबिर असलाफ को बिल्कुल फरामोश कर दिया जाता है, हमारे अकाबिर असलाफ को बिल्कुल भुला दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता, आप किसी जगह भी चले जाइए, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर हमारे अकाबिर असलाफ के बयान में नाम नहीं आता। हालांकि सन 1754 ईस्वी से लेकर 1947 तक 200 साल से जायद का अरसा है। इन 200 साल अरसा में अगर सबसे ज्यादा अपनी कुर्बानियां किसी ने पेश की तो वो मुसलमानों ने पेश की। इसलिए हिंदुस्तान जितना ही गैरों का है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है, उससे कहीं ज्यादा हकदार इस हिंदुस्तान के हम मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।